Hello kids, today we are going to learn 7th standard science subject 6th chapter measurement of a physical quantity. So in the last video we have learned about difference between mass and weight, scalar quantity and vector quantity and standardized measurement. So mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity, and mass means the amount of matter present in the substance, it's called mass, and unit is gram and kilogram. Weight means weight, it's change on the earth's surface according because of the gravitational force by which the earth attracts the object toward its center, it's called a weight of that object. And weight is a vector quantity and it is different at a different places on the earth, मीन्स वेट वेरिएबल है, वो चेंज होते रहता है और उसके अलग अलग प्लेसेस पे. नॉट स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट मीन्स वॉट, हैंड स्पैन के थ्रू स्ट्रिंग वगैरह मेजर कर रहे हैं या फिर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट नहीं है. मीटर में मेजर करना, दैट इज़ द स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट. So standardized measures are required for measuring a things. This such a measure are called standard unit. So MKS, CGS system are a standardized measurement. So MKS means meter, kilogram and second. CGS means centimeter, gram and second. So mass में MKS यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, एंड CGS में ग्राम. सो ऐसी डिस्टेंस में क्या होगा, MKS मीटर एंड CGS में सेंटीमीटर. टाइम यूनिट इज सेकेंड फॉर MKS सिस्टम एज वेल एज GCS सिस्टम. एंड स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड एंड CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट अ फंडामेंटल क्वांटिटी. Fundamental quantity means what? There are different physical quantity, but the majority of them they related to each other. So we have learned that the quantity of speed, the ratio of distance and time, means speed means distance upon time. Now we will learn about the fundamental quantity. Fundamental quantity means what? It is enough to select a few out of many quantity and standardize their unit. You can see from the above example that the unit of the quantity, length and time need to standardize. तो फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स व्हाट, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट है, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है, बट हमें उसमें से यूनिट ऑफ द क्वांटिटी, लेंथ एंड टाइम टू बी स्टैंडर्डाइज. तो कौन सी यूनिट स्टैंडर्डाइज्ड वो हमें आइडेंटिफाई करना है. लाइक such a quantity are called the fundamental quantity and their unit are called a standard unit. जैसे कि टाइम का यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है, इसमें सेकंड ही यूज होता है. डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, स्टैंडर्ड यूनिट है. मास का यूनिट किलोग्राम है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. तो such a quantity are called a fundamental quantity and their unit are called a standard unit. मतलब ऐसे जैसे डिस्टेंस हुआ, टाइम हुआ, मास हुआ, ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं एंड उसकी यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. सो ऑफ कोर्स अ स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल, इट इज़ मस्ट नॉट बी वेरिएबल. मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम ही रहते हैं, अलग अलग चेंज नहीं होती. नॉट अ वेरिएबल. सो एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट बेस्ड ऑन सेवन फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड अ सिस्टम इंटरनेशनल. सो ऐसा इज करंटली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज़ कॉल्ड द मेट्रिक स्पेस. जैसे कि अगर हमने कहीं किसी चीज़ का डिस्टेंस मेजर किया है तो हम यूनिट क्या लगाएंगे, मीटर. और वो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी कंट्री की किसी भी प्लेस पे चले जाओ तो हमेशा डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर. ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है. मास का यूनिट क्या होगा, हमेशा किलोग्राम ऑल ओवर वर्ल्ड. टाइम का यूनिट सेकेंड होगा.
ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पे भी किसी भी जगह चले जाओ तो उसका यूनिट हमेशा क्या होगा, सेकेंड. सो नाउ the name and the symbol of the unit of the fundamental quantity length, time and mass in this system are given in the following table. Length meter, symbol of the unit m. Mass, name of the unit kilogram, symbol of the unit kg. Time, name of the unit second and symbol of the unit s. So symbols याद रखना है. लेंथ का symbols क्या होगा, m. मास का kg and टाइम का s means second. Now the standard of the fundamental quantity as the standard of the mass, solid cylinder made by the platinum iridium alloy is kept in the International Bureau of the Weight and Measure at Paris. मतलब प्लेटिनम एंड इरिडियम अलॉय जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट पेरिस, मतलब पेरिस में मेजर हो रहा है. सो एज द इंटरनेशनल एग्रीमेंट दिस मास इज कॉल्ड 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है मास का, केजी. तो सब जगह पे क्या यूज होगा, केजी, किलोग्राम. So officially accurate copy of the prototype are kept in the standardized laboratory institute all over the world. तो हमेशा उसका मास कितना होगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, 1 kg, किलोग्राम यूनिट हम यूज़ करेंगे. Now to find the line are engraved on a platinum iridium bar kept in a international bureau of weight and measure at the Paris. दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस से मीटर यूज़ करेंगे. सो द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन एक्सेप्ट एज द स्टैंडर्ड मीटर. एक्यूरेट कॉपी ऑफ दिस टाइप ऑफ आर मेड एंड डिस्ट्रीब्यूट टू स्टैंडर्डाइज लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मीटर. वाई, बिकॉज ऑफ मीटर इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. नाउ द टाइम रिक्वायर फॉर 1 revolution of the earth, it's measured by mean of an accurate device. This time is taken as 24 hours. To standardize 1 second and 1 hour is considered as have 60 minutes and 1 minute means 60 second. So normal revolution of the earth को कितने टाइम लगता है, 24 hours. इस रोटेशन में 24 hours, but 24 hours is not a standard unit. Hours is not a standard unit. So स्टैंडर्ड यूनिट क्या है यहाँ पे, सेकेंड. तो सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा. सो 60 मिनट मीन्स 1 आवर. सो एंड 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड. सो 1 आवर मीन्स वॉट, 60 into 60 3600 सेकेंड. सो यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 मिनट means 60 second and 60 minute means 1 hour. Now observe and discuss. So identify the wrong method of measurement and showing in the picture and explain why they are wrong. So there are, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि मेजरमेंट रॉन्ग कौन सा है. तो हैंड स्पैन मेजरमेंट इज़ रॉन्ग. किसी का हाथ बड़ा हो सकता है, किसी का हाथ छोटा हो सकता है, तो ये मेजरमेंट क्या हुआ, रॉन्ग होगा. एंड वो हमें लिक्विड मेजर करना है. तो लिक्विड मेजर करने के लिए हम लीटर यूज़ करेंगे. तो एक पैरामीटर्स होता है, डिवाइस होता है लिक्विड यूज़ मेजर करने के लिए. हम 1 ग्लास 2 ग्लास के थ्रू मेजर नहीं कर सकते, रॉन्ग मेथड होगा. एंड जो स्केल का मेजरमेंट है, ये स्केल का मेजरमेंट भी क्या है, रॉन्ग है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया है. सो 2 to 8 is a wrong measurement. When we are starting from a starting point to here, so we can say that 8 centimeter, but here it's started from a middle. So all these are a wrong measurement.
but here this one is the correct measurement. These are all the wrong measurement, but here 1 to 12 point something, 12, 1 to 12 centimeter, that is the correct measurement. And here we are used the balance, weight balance, it also a correct measurement. तो ये दोनों ही करेक्ट मेजरमेंट थे, क्योंकि इनका प्रॉपर स्केल यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट, और यहाँ पे बैलेंसिंग यूज़ कर रहे हैं मेजर करने के लिए, ना कि हैंड स्पैन और ग्लास के थ्रू मेजर कर रहे हैं. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट. एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है? सो हाउ एक्यूरेट अ मेजरमेंट मस्ट बी डिपेंड अपॉन इट पर्पस. अकॉर्डिंगली एन अप्रोप्रिएट डिवाइस हैज़ टू बी यूज फॉर मेजरमेंट. So how accurate measurement must be depend upon its purpose. According to appropriate device has to use for the measurement. मीन्स मेजरमेंट के लिए हमें अप्रोप्रिएट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी. ऐसे नहीं है कि अगर हमें वेजिटेबल्स को मेजर करना है, उसका हमें मास फाइंड आउट करना है, वेट निकालना है, तो हम स्केल लेकर जाएंगे. तो हमें बैलेंसिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी. अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो हम स्केल लेकर जाएंगे, ना ही कि बैलेंसिंग मशीन लेकर जाएंगे. सो किसी भी चीज़ की अगर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें अप्रोप्रिएट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी. सो मेजरमेंट ऑफ द सब्सटेंस दैट आर अप्रिशियस of a great importance of the use in a very small quantity is done meticulously and accurately due to advancement in a technology. Device that measure very small magnitude or quantity like distance, mass, time and temperature are available now. मतलब जितने भी स्मॉल मैग्नीट्यूड की भी जो क्वांटिटीज़ हैं वो भी हम इजीली अब मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक्यूरेट डिवाइसेस आ गए हैं. जैसे कि अगर टेम्परेचर मेज़र करना होगा तो हम स्केल से मेज़र नहीं कर सकते, तो उसे हमें थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी. तो थर्मामीटर मार्केट में अवेलेबल है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए. तो स्मॉल मैग्नीट्यूड भी हम इजीली मेज़र कर सकते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल डिस्टेंस एंड टाइम इन अ कनेक्शन विथ वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, मास ऑफ अ गोल्ड, बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा. तो डिस्टेंस और टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स में, कि कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, या फिर टाइमर हम लोग यूज़ करते हैं रनिंग वगैरह के लिए. तो फॉर दैट इट्स वेरी यूजफुल टू एक्यूरेट मेजरमेंट. बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. सो कैसे पता चलेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. थर्मामीटर. नाउ मेजर कॉजेस ऑन द एरर इन मेजरमेंट. मेजरमेंट करते टाइम पे जो एरर्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं, क्या कारण है एरर आने का मेजरमेंट में? सो नॉट यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइस. नॉट यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइस मीन्स अगर हमने डिवाइस को प्रॉपर हैंडल नहीं किया है, प्रॉपर पकड़ा नहीं है, सो उसमें एरर आ सकते हैं. जैसे कि अगर मार्केट में जाए कोई सामान लेने के लिए, तो बैलेंसिंग मशीन पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर वो क्रॉस में है या फिर थोड़ा स्लोपरी रीजन में स्लोपरी रखा हुआ है, प्रॉपर फ्लैट जगह पे नहीं रखा हुआ है, तो हमारे जो वेट करने के लिए हम जो मटेरियल देंगे, वेजिटेबल्स देंगे, उसमें कम होगा वो, मतलब वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होगा. तो हमेशा ये याद रखना है कि जब कहीं हम लोग बैलेंसिंग के लिए देते हैं, बैलेंसिंग मशीन होती है और वो अगर फ्लैट जगह पे नहीं है तो उन्हें बोलना है कि फ्लैट जगह पे रखिए. क्यों? क्योंकि फ्लैट जगह पे न रहने पे वो डिसबैलेंस होता है और हमारा मेजरमेंट प्रॉपर नहीं आता. सो नॉट यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिवाइस और नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली. नॉट यूजिंग डिवाइस प्रॉपरली का ये मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर डिवाइस को हम प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो मेजरमेंट रॉन्ग हो सकते हैं, उसमें एरर आ सकते हैं. और मोस्टली शॉपकीपर्स ऐसा करते हैं, वो जो बैलेंसिंग मशीन होती है उन्हें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रख देते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि जब हम बैलेंस के लिए मटेरियल्स देंगे तो उसमें शॉपकीपर्स को फ़ायदा होता है. सेकेंड एग्जांपल है नॉट यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइस. सपोज करो अगर हमें डिस्टेंस मेज़र करना है और हम
वहाँ पे बैलेंसिंग मशीन यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉपर मेजरमेंट मिलेगा क्या? नहीं। अगर डिस्टेंस मेज़र करना है हम हैंड स्पैन यूज़ करेंगे तो प्रॉपर एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा क्या? नहीं। और मेजर करते टाइम पे भी अगर हमने प्रॉपर रीडिंग नहीं लिखी 0 to 1, 1 to 10, 1 to 2, 2 to 3, अगर प्रॉपर स्केल रख कर हमने अगर मेजरमेंट नहीं लिया तब भी हमारा मेजरमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। सो नॉट यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइस एंड नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली, मतलब जिस चीज़ के मेजरमेंट करना है उसी चीज़ का हमें डिवाइस यूज़ करना है, ना कि कोई और। बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो हमें थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि स्केल की। सो अप्रोप्रिएट डिवाइस यूज़ करना है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर अदर देन दीज. Do you really get as many liter of petrol as the petrol pump indicate? To ensure that it is necessary to check it against the standard measure from a time to time. This is called the standardization. मतलब अगर पेट्रोल पंप में जाते हैं तो पेट्रोल पंप के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट्स के अकॉर्डिंग. दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन. Similarly, it is necessary to standardize the weight and measure used in the market. While buying this is a grocery shop, the vegetable market, remember to look out for the following and tell your guardian to do so. तो अगर कहीं ग्रोसरी शॉप में जाते हो, वेजिटेबल मार्केट में जाते हो तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है और अपने पेरेंट्स को भी बताना है. डज द बैलेंस कैरी द स्टैम्प ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वेट एंड मेजर. तो जो बैलेंस कैरी करने का स्टैम्प है वो प्रॉपर है या नहीं, जहाँ पे वेट रखते हैं वो और मेजर रखते हैं वहाँ पर, तो वो चेक करना है. इज़ द बैलेंस स्टेबल, इट इज़ अ पॉइंटर टू द बैलेंस अपराइट. मतलब वो स्टेबल जगह, बैलेंस जो रखा हुआ है वो स्टेबल जगह पे रखा है या नहीं, और जो उसका पॉइंटर है वो पॉइंटर स्ट्रेट स्टेबल अपराइट है या नहीं, वो चेक करना है. कभी कभी क्रॉस होता है. नाउ इज़ द वेट मेड आर मेटल, हाउ इज़ द बैलेंस हेल्प. जो वेट करने की सामान है वो मेटल का है या नहीं. नहीं तो कभी कभी कैसे होता है, कोई पत्थर रख देता है कि ये पाव किलो का है, 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, पत्थर रख देते हैं. सो वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है. हाउ हैज़ अंडर साइन ऑफ द पैन ऑफ द बैलेंस बीन टेम्पर्ड विथ. एंड to prevent the consumer from being cheated, a weight and measure subdivision function as part of the food urban supply and consumer protection division of the government. तो ये सारी चीटिंग से बचने के लिए, कंज्यूमर को ये सारी चीटिंग से बचने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट है, जहाँ पे हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं. So officer of this subdivision visit the different places from time to time and ascertain whether the weight and balance being used for a proper or not. So वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो कभी भी कहीं पे भी किसी जगह पे जाके हमेशा उनके वेट एंड बैलेंस को चेक करते रहते हैं वो प्रॉपर है या नहीं. एंड इट इज़ बाइंडेड बाय द लॉ टू यूज़ द स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर. और सभी ये बाइंडेड है कि वो स्टैंडर्ड यूनिट का ही यूज़ करें वेट एंड मेजर के लिए. And it is also a function of the weight and measure subdivision to grant a license for the production, sale and repair of a weight and measure. सब जो अर्बन सप्लाई मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिवीज़न ऑफ द गवर्नमेंट है वहाँ पे कंज्यूमर चीट ना हो करके वो स्टैब्लिश किया गया है. अगर वहाँ पे कंज्यूमर्स कंप्लेन भी कर सकते हैं और वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिवीज़न ऑफ द गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो टाइम टू टाइम कहीं पे भी किसी भी शॉप्स में जाके वो वेट एंड मेज़र को प्रॉपर, बैलेंस को प्रॉपर चेक करते हैं वो प्रॉपर है या नहीं. और सबके लिए ये बाइंडेड है कि वो वेट एंड मेज़र के लिए स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करें. नाउ हु इज़ माय कंपेनियन ग्रुप ए एंड बी. सो वेलोसिटी मीन्स व्हाट? वेलोसिटी मीन्स distance upon time. So distance unit what? Meter. Time unit is second. So distance meter per second means C answer is correct. Now area means length into breadth. So length means meter, breadth also in meter, that is a square meter. So this one is the correct. For a second, square meter.
See, now volume. Volume means mass means kilogram. Standard unit kilogram. Now volume means liter and density means kilogram per cubic meter. Density means mass upon volume होता है. So kilogram cubic meter. So in this chapter we will learn about mass and weight, difference between mass and weight, scalar quantity, vector quantity, standardized unit, fundamental units. Standardized unit means what? प्रॉपर मेजरमेंट यूज़ करना और उसकी यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं. और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, मीन्स SI यूनिट बोलते हैं. सो और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट. क्या मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट का इम्पॉर्टेंस क्या है, और मेजर कॉजेस ऑफ एरर इन मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट करते टाइम पे एरर क्यों आते हैं, क्या रीज़न है. सो फर्स्ट, नॉट यूजिंग अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट डिवाइस, एंड सेकेंड इज नॉट यूजिंग अ डिवाइस प्रॉपर. डिवाइस को अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तब रीडिंग में एरर आएगा, और अगर अप्रोप्रिएट डिवाइस अगर यूज़ नहीं करेंगे सो उसमें एरर आ सकते हैं.